Assalamu alaikum, everyone. Thank you for joining this session. This is Maria Sarfraz from Office of Corporate Linkages and Placements. I welcome you all to the first session of 4M program, Mentor Mentee Matchmaking, a thoughtful initiative under the vision of President UMT, Mr. Ibrahim Murad, whereby we connect the high potential league students and co-op students of UMT with the industry experts and mentors while doing the right matchmaking. In this program, we brought in mentors from Orient to orient our students on multiple career related aspects and also on the industry perspectives. In today's session, we have invited Mr. Saadullah Jaral, who is respected and self-motivated professional with more than 9 years of experience managing multiple projects simultaneously, extensive experience managing large-scale projects from the requirements gathering phase to completion, highly skilled in tracking details, communicating deadlines, and follow up with internal and external partners to ensure timely completion. Holding a BBA honors double majors and MBA marketing degree from Lahore School of Economics and having experience in multiple industries, including IT, banking, engineering, and power and energy. He has managed to uh, he has managed an extension HR profile comprising of end-to-end recruitment, HR lifecycle, employee engagement and branding, industrial relations, organizational development, performance management, HR strategy, and change management. So I would like to thank Mr. Saad for taking out time from his busy schedule and mentoring our co-op students today to be ready for them and become a marketable graduate. Now I would like to hand over the session to Mr. Saad. Thank you, Saad. Hello. Ji Maria, thank you so very much for the lovely introduction and this whole setup. I actually extremely like the idea. This is something that we have actually introduced in our company as well. The program of mentor mentee traineeship, where we even assign young graduates, even experienced graduates, to some mentors जिनका माशाल्लाह से experience अच्छा होता है इंडस्ट्री कंपनी के अंदर, और वो काम से हटके भी बहुत सारी चीजें उनसे डिस्कस करते हैं, देयर पर्सनल लाइफ, देयर ओपिनियन, हाउ टू मेक डिसीजंस इन लाइफ, उनके इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग. ठीक है. सो आई कैन टोटली रिलेट टू द होल आइडिया दैट यू गाइस आर डूइंग. और मुझे सुन के बड़ी अच्छा लगा था आपका प्लान, जब आपने इवन ये शेयर भी किया था कि समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड at the university level as well, क्योंकि आपकी मेन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एग्जैक्टली स्कूल या यूनिवर्सिटी लेवल से ही होती है ऑब्वियसली. ठीक है. क्योंकि once you are inducted into any company, उसके बाद तो obviously कंपनी आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करती है. लेकिन अच्छा होता है कि अब जिस तरह की competitiveness आ चुकी हुई है इंडस्ट्री के अंदर, जितना स्किल सेट एनहांस हो चुका हुआ है, लर्निंग एवेन्यूज और अपॉर्चुनिटीज मिलने शुरू हो गए हैं, तो ये वाली जो ट्रेनिंग है ये भी यूनिवर्सिटी लेवल से ही स्टार्ट हो जाए, तो इट इज वेरी गुड. अच्छा जी. सो आई एम लाइक thoroughly delighted. I'm actually quite motivated for being invited for the very first session of this program. I thought कि शायद मेरे से पहले भी ये session conduct हो चुका होगा, लेकिन क्योंकि आपने मुझे बताया this is the very first program and I will be the opening speaker for this program, so I'm quite motivated again. और स्पेशली जब भी इंडस्ट्री के और यंग ग्रेजुएट से, यंग ब्लड से, यंग फ्रेश माइंड से डिस्कस करना हो, एक वैसी बड़ी एक मोटिवेशन, एक अच्छा फील होता है कि यार देयर वाज अ टाइम व्हेन वी यूज्ड टू सिट ऑन दोस बेंचेस एज वेल, और हम भी किसी को सुनते थे यूनिवर्सिटी में, और हमें भी लगता था कि यार अभी हम यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर की लाइफ पता नहीं कैसी होगी, एंड इट इज अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड व्हाट यू गाइस स्टडी इन यूनिवर्सिटी, the process, the challenges that you guys go through. यूनिवर्सिटीज के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में जाके बिल्कुल ही इट इज लाइक 360 डिग्री डिफरेंट सिनारियो. सो आई वुड बिलीव, आई वुड फील कि मैं इस सेशन को जितना ज़्यादा इंगेजिंग रख सकूं, जो यंग ग्रेजुएट्स हैं इनकी जितना ज़्यादा मसलों को सुन सके, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम और क्वेश्चंस को रिलेट कर सकें, बिल्कुल उनके लेवल के ऊपर जाके मैं उनको एक्सप्लेन कर सकूं. ठीक है जी. So I believe we have around about like 6 students in this particular batch.
1 2 3 4 we have 5 students. फाइव स्टूडेंट्स अभी अवेलेबल हैं, दो तीन अभी और ने ज्वाइन करना है, बट आई थिंक वो बारिश भी हो रही है कुछ इलाकों में, तो लाइट का भी इशू आ रहा है। Sure, तो no problem. जैसे ही आते जाएंगे विल No problem. Most of all, I believe that's a good thing कि आप recording भी कर रहे हैं. हाँ जी। So anyone who wants to go through the session, वो इसको सुन के कुछ points अगर excerpts note करने होंगे तो वो कर लेंगे इसमें से, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, just one thing first कि ये जो 5 students हैं हमारे पास, ये exactly किन majors के हैं? या तो ये one by one बेशक खुद अपना introduction करवा दें ताकि हमारी guys picking भी हो जाए. So we have Asad, Danish, Hassan, Naeem and Nasir. So guys, I would want like one by one कि आप लोग थोड़ा सा अपना एक brief intro जो है ना, 1 or 2 लाइनर अपने बारे में, अपना नाम, अपनी डिग्री, इंटरेस्ट और हॉबीज क्या है और फ्यूचर में क्या दिखना चाह रहे हो अपने आप को, थोड़ा सा ये जरा एक्सप्लेन करते प्लीज, वन बाय वन. वी कैन स्टार्ट ऑफ विद असद. हाँ जी बिल्कुल, आप सारे अपने कैमरास भी ऑन कर सकते हैं और अपना जो है अपने माइक्स अनम्यूट भी कर सकते हैं. हाँ, इन सबसे पहले पूछ लें कि माइक्स तो चलें ठीक है, कैमरा करना सबके लिए फिजिबल है भी है कि नहीं, बिकॉज पीपल आर जिसके लिए फिजिबल है वो कर ले. हाँ ऑब्वियसली जिसके लिए फिजिबल है वो कर ले, बाकी इट्स ओके. जी, तो असद वी कैन स्टार्ट ऑफ विद यू प्लीज. असद आपको आवाज आ रही है? असद के अलावा कोई और स्टार्ट कर ले, दानिश कर ले, नासिर कोई भी स्टार्ट कर ले गाइस. जिसको भी आवाज आ रही है वो काइंडली म्यूट अनम्यूट करके काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ताकि फिर हम आगे फर्दर ले चले. हसन, अगर आप स्टार्ट करना चाहो. We have Nasir as well. Naeem. Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम हसन. My name is Hassan Shabir. I did my software engineering, BS software engineering from University UMT. Okay. Recently graduated हुआ हूँ. मेरे अभी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट आना है. फाइनल ईयर की अभी मेरे ग्रेडिंग होनी है. ग्रेडिंग हो गई है, बेसिकली उसका भी ग्रेड लगना है ट्रांसक्रिप्ट पे. डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो गई है. उसके अलावा मैंने एक जगह डेवलपर स्टूडियो, एक सॉफ्टवेयर हाउस है, न्यू आया मार्केट में, तो उनके साथ 3 मंथ्स का ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था फुल स्टैक डेवलपर का. और ब्लॉकचेन पे उनका काम है बेसिकली इस कंपनी का. तो वहाँ पे ब्लॉकचेन पे भी थोड़ा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, इथेरियम, ERC20 वगैरह पे थोड़ी सी लर्निंग की है. तो अब मेरा आगे इंटरेस्ट है कि ब्लॉकचेन या डाटा साइंस में जाया जाए, डेवलपमेंट से किसी तरफ से थोड़ा सा चेंज किया जाए अपने आप को. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ठीक है जी, थैंक यू हसन. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू नासिर. नासिर, अगर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सको अपना तो. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. So my name is Mohammad Nasir Salim. Currently I completed my 4th semester and in October I enrolled in 5th semester. In future I want to become a application developer. बिल्कुल ठीक हो गया जी, बेहतरीन. हम आगे चलते हैं. अच्छा गाइस, एक चीज मैं आपको जरा पहले से थोड़ा सा कंफर्टेबल कर दूं. जरूरी नहीं है कि हम लोग कोई अपना इंट्रोडक्शन भी इंग्लिश के अंदर दें. कोई अगर उर्दू के अंदर भी कहना चाह रहा है तो आप उर्दू के अंदर ही बात कर सकते हो, ठीक है. सो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. कोई स्कूल और यूनिवर्सिटी वाली मैं फील नहीं करना चाहता. एक बड़ा ओपन और रिलैक्स होकर हमने डिस्कशन करनी है. अगर आप लोग रिलैक्स नहीं होगे तो जो मेन पर्पस होता है इस मेंटोर मेंटी की एक रिलेशनशिप या सेशन का, उसका कोई फायदा नहीं है. तो जैसे बात करना चाहो, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, बस समझ आ जाए कि इस बात, जैसे मर्जी आप बात कर सकते हो, ठीक है. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं. हाँ जी, दानिश या असद कोई भी स्टार्ट कर ले. जी मैं स्टार्ट कर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. This is Danish Jamil. Assalamu alaikum. This is Danish Jamil and I studied in UMT and I completed my 2nd semester and my degree is artificial intelligence and I want to become a data scientist.
Thank you. जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल ठीक हो गया। फाइनली असद रह गए हैं, और असद के अलावा भी आई थिंक कोई और रह गया शायद फिर। जी मैं डेटा इंटर जी प्लीज आप कर देना ही। जी मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से। मेरा इंटरेस्ट है वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन। करंटली मैं फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख रहा हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया जी। एंड नाउ वी हैव फाइनली असद। असद अगर आप बोल भी रहे हैं या कुछ सीन है तो आप पहले अनम्यूट कर लो। अच्छा चलें ठीक है, मे भी शायद कोई असद की साइड से प्रॉब्लम आ रही हो। वी कैन प्रोसीड फर्दर देन। ओके गाइस, सो मारिया ने काफ़ी डिटेल में मेरा इंट्रोडक्शन दे भी दिया था। मैं थोड़ा सा खुद भी अपने बारे में बता देता हूँ, बिकॉज आई नो कि उन्होंने इंट्रोडक्शन काफ़ी आपको लंबा एक्सप्लेन किया है। लेकिन जिस तरह आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, मैं भी थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ जस्ट टू कनेक्ट विद यू गाइस। मेरा नाम सादुल्ला जराल है। मैंने अपना स्कूलिंग जो है वो बीगन हाउस से की थी, फ्रॉम अ स्मॉल सिटी इन पंजाब। आई बिलोंग टू एक्चुअली गुजरात, वहाँ पर अपब्रिंगिंग सारी हुई, एंड नाउ सेटल्ड इन लाहौर। इंटरमीडिएट मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से किया था बैक इन द ईयर 2004 एंड 5। और उसके बाद फॉर माय बैचलर्स एंड फॉर माय मास्टर्स आई वेंट टू लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो राइट आफ्टर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने जो पहली जॉब की थी वो एमसीबी बैंक में की थी एज एमटीओ। उनका प्रोग्राम्स होते हैं टीबीओ एमटीओ, वो ज्वाइन किया था। बैंकिंग इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट मैंने कुछ 3 साल काम किया। फिर उसके बाद में आ गया था आईटी इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है जी, तो बैंकिंग छोड़ने की वजह यही थी कि बड़ा ड्राई सा काम लगता था। ठीक है, हर वहाँ पर बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती थी ग्रोथ की, बट आई फेल्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि यार काम बड़ा स्लो चल रहा है यहाँ पर। लर्निंग एंड ग्रोथ दूसरा नहीं होनी। जो चीज़ मैं चार था, जो अपने गोल्स थे, वो बहुत ही जाके ना स्लोली अचीव होने थे। तो आई ज्वाइन एन आईटी कंपनी। आईटी कंपनी मैंने ज्वाइन की। किस कंपनी में ज्वाइन किया वो बाद में बताता हूँ। लेकिन आईटी कंपनी में आके एहसास हुआ कि यार दुनिया कितनी प्रोग्रेसिव है और टेक्नोलॉजी वाइज कहाँ से कहाँ निकल रही है। ठीक है, सो उस कंपनी का नाम था क्योर एमडी। आई एम श्योर आप लोगों ने उसका नाम शायद सुना होगा। अमेरिकन बेस्ड आईटी कंपनी है, बड़ा उनका कंपेटिटिव और प्रोग्रेसिव सा वर्क एनवायरनमेंट है। सो वहाँ पर रह के बहुत कुछ सीखा समझा। उसके बाद घूमता घुमाता एक दो इंडस्ट्री के अंदर भी गए, एचआर को लीड भी किया। और पावर सेक्टर में हो जाए, एनर्जी सेक्टर में हो जाए, इंजीनियरिंग बेस्ड कुछ पावर प्लांट्स जिस तरह हमारे होते हैं, जहाँ पर आपको जिस तरह बिजली घर भी कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिस तरह नून लीग के गवर्नमेंट बहुत सारे बिजली घर लगे थे। सो एक वो कंपनी थी जो कि उनकी कंस्ट्रक्शन करती थी, तो मैंने वहाँ पर एक उनकी एचआर को भी लीड किया। and now more recently I am currently working with Netcom and I am leading their recruitment wing. Okay, एक छोटी सी स्टोरी, बस एक एक्साइटिंग सी एक बात पहले से समझा दूं, और उसकी बेस के ऊपर हम अपना पूरे का पूरा सेशन जो है ना वो बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं जो कि लाइफ एक्सपीरियंसेस मैं आपको बताऊंगा, और उसी के अंदर हम अपने लेसन भी लर्न करेंगे, और जो आपके क्वेश्चंस होंगे हम वो लेंगे। ठीक है, so this is an open session. Whenever you guys feel like you want to ask anything, आई डोंट नो, मैंने टीम्स के अंदर तो यूज किया हुआ है, इसके अंदर पता नहीं वो रेज हैंड वाला ऑप्शन होता है या नहीं होता, बट खैर व्हेनेवर यू गाइस फील लाइक यू वांट टू आस्क एनीथिंग, आप स्ट्रेट अवे मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीथिंग, आप फौरन बस क्वेश्चन पूछ लेना। अच्छा, इंटरेस्टिंग वैसे क्वेश्चन जो स्टोरी में बताने लगा था वो ये था कि एट टाइम्स व्हाट हैपन कि हम लोग ग्रेजुएशन से निकल के या यूनिवर्सिटी में हम लोग बहुत सारी चीजें प्लान करते हैं, बट एक हमारी प्लानिंग होती है और एक एक बड़ी जात है वो एक उसकी प्लानिंग होती है। ठीक है, एंड नॉट एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू द प्लान जो कि आप डिसाइड करते हो। ठीक है, एक जिंदगी का एक अपना तरीका होता है, वो आपको उस तरीके से लेके चलती है। तो मैं जब यूनिवर्सिटी, बल्कि मैं जब कॉलेज में था, तो मैंने राइट देयर एंड देन डिसाइड किया था कि यार आई हैव गुड स्किल्स व्हेन इट कम्स टू पीपल। मेरे रिलेशनशिप बिल्डिंग बड़े अच्छे हैं, मैं बोल भी सकता हूँ प्रॉपरली, मैं लोगों से कनेक्ट भी हो सकता हूँ, तो मेरे अंदर ना एक मार्केटिंग वाले स्किल्स हैं। ये मैंने इंटर में डिसाइड कर लिया हुआ था और अपने बारे में जज किया था। सो इसीलिए उस स्किल सेट की बेस पे आई ऑप्टेड फॉर बिजनेस स्टडीज,
और मैं LSE गया था BBA और MBA करने, और मेरा इवन MBA तक मार्केटिंग के अंदर था. सो दिस इज व्हाट 2011 एंड 12, जब तक मेरा प्लान था कि मैंने मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, इस तरह की फील्ड के अंदर काम काज करना है. बट हुआ क्या कि जब मुझे पहली जॉब मिली वो थी HR की. प्रॉपर ट्रेनिंग हुई हमारी 6 महीनों की बैंक के अंदर, एंड बाय द एंड ऑफ द होल ट्रेनिंग प्रोसेस दे फाउंड आउट कि यार साद एज अ पर्सन माइट नॉट बी गुड इन मार्केटिंग, लेकिन वो एक पीपल पर्सन है तो वो HR के अंदर जा सकता है. So I opted for HR. HR was my second or third preference. It was never my first preference. Okay. अच्छा, so जब HR मैंने ज्वाइन कर लिया, आई वाज क्वाइट स्केप्टिकल कि यार मैं इस फील्ड को ज्वाइन करूं या ना करूं, आगे मैं जॉब स्विच कर लूं या क्या कर लूं. बट अगेन आई ट्राइड कि यार एटलीस्ट 3 महीने देते हैं, देखते हैं एक्सपीरियंस करके कैसा है, नहीं अच्छा हुआ तो स्विच कर लेंगे. During those 3 months, I realized yeah, this is something which is quite close to me. ये बिल्कुल वैसी है जिस तरह मार्केटिंग होती है. मार्केटिंग में आपके पास कस्टमर्स होते हैं, आप उनकी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करते हो. और HR के अंदर वही कस्टमर्स दे आर ओनली रिप्लेस्ड बाय योर एम्प्लॉयज. आप एम्प्लॉयज की जो नीड्स एंड वांट्स है उसको देखते हो, और ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स है उसको फुलफिल करते हो. तो मेरे लिए उसको रिलेट करना बड़ा, ठीक है. और तब से अभी तक इट्स बीन लाइक मोर देन 9 years मैं HR ही किए जा रहा हूँ. तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर, या इस 9 साल की जो बात है, ये जो छोटी सी स्टोरी सुनाई है, इसके अंदर लेसन लर्न यही है कि बहुत सारी चीजें आप लाइफ में प्लान आउट करोगे, एंड 80% ऑफ दोज थिंग्स विल नॉट गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान. ठीक है, लेकिन आपने उस चीज में डिसहार्ड नहीं होना, आपने उसमें उम्मीद नहीं छोड़नी, बिकॉज हर चीज का एक टाइम होता है और एक तरीका भी होता है. एवरीथिंग विल कम एट इट्स पर्टिकुलर टाइम, और जो चीज आपके लिए लिखी गई है वो आपके लिए बेहतर ही लिखी गई है. नाउ आई फील लाइक मे बी अगर मैं मार्केटिंग के अंदर होता तो हर वक्त सेल्स की जॉब, गाड़ी के ऊपर आगे पीछे कर रहे होते, कोई सुकून वगैरह मुझे नसीब ना होता. कभी मुल्तान जाना है, कभी कराची जाना है, कभी ढरकी जाना है, जो डिफरेंट FMCG कंपनीज होती हैं. लेकिन अब जो काम है, ऑफिस में सुकून से बैठे होते हैं, एक अथॉरिटी भी होती है, हायरिंग फायरिंग ये वो सब कुछ हम काम काज करते हैं. ठीक है, सो छोटा सा बस प्रोसेस यही था कि आप लोगों ने डिसाइड नहीं होना, जो भी आप लोगों के प्लान्स हैं ट्राई टू अचीव देम. लेकिन अगर वो अचीव नहीं भी हो रहे, सो इट मीन्स के द हायर अथॉरिटी ऑलमाइटी ही हैज अ ग्रेटर प्लान फॉर यू टू अचीव. ठीक है. अच्छा, अब इससे हम आगे लेके चलते हैं अपनी जो फर्दर चीजें हैं. आप में से काफी सारे बच्चे जो हैं ना, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उन चीजों के ऊपर काम काज करना चाह रहे हो, और मैं थोड़ा सा आपको बस ब्रीफ ये दे देता हूँ. अच्छा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर्ली कोई स्लाइड्स प्रिपेयर नहीं कर सका, बिकॉज आई वाज कॉट अप इन वर्क, और बड़ी मुश्किलों से मैंने वो टाइम निकाला था. मैं चाहता था कि मैं आपके लिए तो प्रॉपर्ली स्लाइड्स बना लूँ, कुछ विजुअल भी हम लोग जरा क्रिएट कर लें, ताकि जो इंटरेक्शन है ना वो जरा एक मजा आता है उस चीज में. वरना बोर लगता है कि एक बंदा बस बोल ही जा रहा है. आप में से कुछ बंदों को नींद भी आ रही होगी, आई एम श्योर. मारिया को भी शायद नींद आ रही हो, लेकिन ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हम जरा 2 वे कम्युनिकेशन कर लें. ठीक है ना. बट अनफॉर्चुनेटली मैं कोई इस तरह की स्लाइड्स बना नहीं सका. आई विल मेक श्योर कि मैं कोई ना कोई चीज कंटेंट बना के बाद में मारिया से और आप लोगों से शेयर भी करूं. ठीक है. अच्छा, बाय द वे, मेरी आदत है कि हम बातों बातों में ना थोड़ा सा जरा फ्रैंक भी होंगे, फ्रेंडली भी होंगे, सार्केस्टिक भी हो सकते हैं, तो माइंड नहीं करना उस चीज का, क्योंकि बिल्कुल इसे कहते हैं ना कि वो फिक्के होके इंटरेक्शन नहीं करना, जरा थोड़ा सा मजाक पे रखते हैं, ताकि आराम से एक फन एक्टिविटी हम सब क्लियर है. ठीक है. अच्छा जी, तो आप सब लोग की मैंने इंट्रोडक्शन सुने. आप में से मेजॉरिटी लोग जो है वो डेवलपमेंट की साइड पे काम काज करना चाह रहे हो. मैं आपको IT के बारे में थोड़ा सा जरा ओवरव्यू दे दूं कि IT इन पाकिस्तान एक तो ग्लोबल लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा बूम कर रही है. ठीक है. फ्यूचर इज IT, हर चीज ऑटोमेट होने जा रही है. आपकी मैन्युफैक्चरिंग तक हर चीज के अंदर जो है ना वो ऑटोमेशन आ चुकी हुई है. ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो रही है, और जो ह्यूमन का काम है इवन सोचने का भी, वो भी अब कंप्यूटर्स को और रोबोट्स को दिया जा रहा है. ठीक है. सो फ्यूचर इज बेसिकली IT. और अगर पाकिस्तान का इसके अंदर पर्सपेक्टिव देखें तो जितनी भी बाहर के प्रोजेक्ट्स हैं वो नॉर्मली चीप लेबर की वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इन्हीं के पास आती है. इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस तरह की कंट्रीज के पास आती हैं. और पिछले एक साल के सिनारियो में जो मैंने अभी तक देखा है, पूरे के पूरी जो आउटकम है इंडस्ट्री का वो चेंज हो चुका हुआ है हमारे नेशनल लेवल के ऊपर, बिकॉज ऑफ कोरोना.
एक तो ये कि पहले एटलीस्ट हम लोग ऑफिस जाके काम करते थे, फिजिकल इंटरव्यू है तो जी आप चल के ऑफिस आओगे, आपका पहला इंटरव्यू होगा, दूसरा इंटरव्यू होगा, तीसरा इंटरव्यू होगा, और उसके बाद जाके कोई 2-3 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद प्रोसेस कंप्लीट होता था। नाउ एवरीथिंग इज रिमोट। हम ये सेशन भी कर रहे हैं रिमोटली। अगर हम 2019 में कर रहे होते या 2018 में कर रहे होते तो मे बी मैं आपके ऑफिस आता, सॉरी आपकी यूनिवर्सिटी आता और वहां पर हम काम काज कर रहे होते। लेकिन यू वोंट बिलीव कि आईटी कंपनीज के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और इतने डायनामिक्स चेंज हो गए हैं कि फॉर द लास्ट 1.5 years पूरी की पूरी कंपनीज जो हैं वो रिमोटली चल रही हैं, और लॉसेस शायद हो रहे हो रेवेन्यू वाइज कम हो रहे हो, लेकिन हर चीज प्रॉपरली चल भी रही है एग्जैक्टली। ठीक है जी। सो जो चेंजिंग ट्रेंड्स हैं वो हम लोगों ने खुद भी ऑब्जर्व करने हैं कि कैसी कैसी नई इनोवेशन आ रही हैं और क्या क्या नए एवेन्यूज डेवलप हो सकते हैं। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू जॉब्स इन आईटी इंडस्ट्री, डिफरेंट डोमेन्स होती हैं। ठीक है जी, जिस तरह भी आप लोग फ्रेशर्स हो तो हम लोग कैटेगराइज करते हैं 3 मेन डोमेन्स के अंदर। या तो बंदा जाना चाहेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जिस तरह आपका SDLC होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कि यहाँ तो कोड आपकी डेवलपमेंट होगी, या उसके अलावा बंदा चला जाएगा डेटाबेसेस के अंदर, या बंदे का इंटरेस्ट होगा सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर, या एक बिजनेस एनालिसिस की भी स्टेज होती है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है उसमें फ्रेशर्स बहुत कम जाते हैं इफ दे परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल। नॉर्मली पहले डेवलपर्स होते हैं और डेवलपमेंट समझने के बाद जो डोमेन ट्रेनिंग होती है, प्रोडक्ट होता है, उसको समझने के बाद आप जाते हो बिजनेस एनालिसिस की डोमेन की तरफ। बिजनेस एनालिसिस कोई मुझे बता सकता है एग्जैक्टली क्या होता है, किसी को कोई बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हो कि व्हाट इज बिजनेस एनालिसिस, ये जो आईटी कंपनीज के अंदर कर रहे होते हैं। अगर आप में से कोई भी समवन वांट्स टू पार्टिसिपेट, कुछ बताना चाहे, प्रॉपर ना पता हो, कोई किसी ने कोई तुक्का भी मारना हो तो वो भी बता सकता है। नईम, नासिर, असद, कोई भी? जी जी प्लीज बताइए। बिजनेस एनालिसिस में बेसिकली ये है कि जो हम रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं ना कस्टमर के लिए, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, तो उसके एनालिसिस आएंगे कि आप एक वेब एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं तो उसका बिजनेस एनालिसिस क्या होगा, वो कितनी ट्रैफिक कोट करेगा, उसके मुख्तलिफ व्यूज आएंगे, उस पर आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, डेवलपर कॉस्ट क्या है, बाद में आपको उससे रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप उसे जनरेट करके देंगे। ये आई थिंक कॉन्फिस और सिस्टम लिमिटेड इस पे काम भी कर रहे हैं MS365 पे। बिल्कुल सही हो गया। हसन, यू आर पार्शियली राइट, आपने एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही बताया है, लेकिन ये बिजनेस एनालिसिस नहीं है, दिस इज अ डेटा एनालिसिस। ठीक है, डेटा एनालिसिस जो है वो ये जब पूरा काम काज SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है, डेटाबेसेस डेवलपमेंट QA हो गया, प्रोडक्ट जब आपने सर्विसेज डिप्लॉय कर दी है, कस्टमर चीजों को यूज कर रहे हैं, उसके बाद आप इस तरह का डेटा गैदर करते हो कि जी यूजेज क्या है, रेवेन्यूज क्या है, अप डाउन टाइम क्या है, डाउन टाइम क्या है, इश्यूज क्या आ रहे हैं। सो दिस इज डेटा एनालिसिस। ठीक है, बिजनेस एनालिसिस एग्जैक्टली क्या होता है कि जिस तरह डेटा एनालिसिस मैंने कहा है ना कि SDLC के बाद आता है जब यूजेज, बिजनेस एनालिसिस आती है ये SDLC से पहले, यहाँ पे को पहला स्टेप। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ कस्टमर, आई एम सिटिंग इन नेटसोल और सिस्टम्स। आप एज ए कस्टमर मुझे कहते हो कि जी मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई कोई पॉइंट ऑफ सेल का, कोई HR का मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई भी चीज चाहिए। सो मैं पहले एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि भाईजान आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, पहले मुझे रिक्वायरमेंट तो बताएं ना। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को SAP का या ओरेकल का पता होगा सॉफ्टवेयर, ये बहुत ही डिटेल्ड ओरिएंटेड और बहुत ही एक्सटेंसिव किस्म के ना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, और इसको कस्टमाइज फर्दर करते हैं, बैरियर्स लगाते हैं बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट। SAP के अंदर अब आपके पास सेल्स फोर्स भी है, सक्सेस फैक्टर HR का भी है, प्रोक्योरमेंट भी है, फाइनेंस भी है, हजारों चीजें हैं। लेकिन आप कहते हो कि यार मुझे सिर्फ HR के लिए चाहिए, और HR के अंदर भी सिर्फ मैंने इंटरव्यू स्केड्यूल करने हैं, छोटी सी एक डोमेन चाहिए। सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आपकी जो सॉफ्टवेयर को जो कस्टमाइज करना है, उसको ऐड करना है, उसके अंदर डिलीट करना है, उसको बेसिकली बिजनेस एनालिसिस के लोग ये स्टेज पर रखते हैं। सो इट मींस कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसको अंडरस्टैंड करना, और वो आगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो टीम होती है उसको फॉरवर्ड करना कि यार कस्टमर ये चाह रहा है, ऐसे आपने प्रोडक्ट इसको बना के।
सो ये होती है बिजनेस एनालिसिस, ठीक है। तो आईटी कंपनीज के अंदर जिस तरह मैं आपको बता रहा था, मेजरली जो फ्रेशर्स के लिए ओपनिंग्स होती हैं वो आ जाती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेसेस, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस और बिजनेस एनालिसिस। इसके अलावा बिजनेस डेवलपमेंट भी हो सकती है, वैकेंसीज बहुत सारी होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत अब टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को भी आ जाते हैं। पाकिस्तान में जितनी भी टॉप की कंपनीज है ना, जिस तरह ये सिस्टम्स होगी, नेटसॉल होगी। बाय द वे सिस्टम्स जो है ना वो मेजरली एक प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है और नेटसॉल जो है ना वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। आई एम श्योर आप सबको इसका डिफरेंस तो पता ही होगा। प्रोजेक्ट बेस्ड के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और प्रोडक्ट बेस्ड के अपने होते हैं, लेकिन यूजली स्टेबल जिसमें जॉब सिक्योरिटी ज्यादा हो वो प्रोडक्ट बेस्ड ज्यादा होती है। वो कंपनी जो कि अपना खुद एक प्रोडक्ट बनाती है और उसको सेल करती है और रेवेन्यू स्ट्रीम जो है ज्यादा सिक्योर होती है उसके अंदर, rather than you rely on projects जहां पर आप जिस तरह देखो, अगर हम माइक्रो लेवल के ऊपर चले जाएं तो फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, जहां से आप प्रोजेक्ट्स लेके उसके ऊपर काम करते हो, रेवेन्यू कमाते हो। बड़ी कंपनी जिस तरह सिस्टम्स है वो एक प्रोजेक्ट बेस्ड है, लेकिन वो ज्यादा काम करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। सैप की इम्प्लीमेंटेशन होगी, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल क्लाउड सर्विसेज वो बहुत सारी प्रोवाइड करते हैं। AWS की होगी, Amazon वेब सर्विसेज, या एज्योर डेवलपमेंट होगी, बहुत सारी इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो दे आर अगेन अ स्टेबल कंपनी, लेकिन वो मेजरली प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है, ठीक है। अच्छा, सो हम टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे थे। सो मैं बता रहा था आपको कि जो मेजर कंपनीज है पाकिस्तान में प्रोडक्ट बेस्ड, दे ट्राई टू गो फॉर अ रिलेटिवली मेच्योर लैंग्वेज, मेच्योर टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर कम से कम बग्स हों, या अगर बग्स इशू आते भी हैं तो एटलीस्ट इतना स्टेबल प्लेटफॉर्म हो या इतना पुराना हो कि उसके एक्सपर्ट्स आपको इजीली मिल जाए, ठीक है। जिन दो आईटी कंपनीज में मैंने काम किया है या कर रहा हूँ, क्योर एमडी एंड नेटसोल, ये दोनों कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम काज करें, जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज भी है, और .NET या ASP.NET फ्रेमवर्क के ऊपर काम काज करते हैं, ठीक है। उसका फायदा यही होता है, बहुत सारे यंग ग्रेजुएट्स ये सोचते हैं कि यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी अब जो नई नई आ रही हैं, रिएक्ट हो गई, फ्रंट एंड की, बैक एंड की, नोड हो गई, जेंगो हो गई, इस तरह की टेक्नोलॉजीज के ऊपर ये पुरानी पुरानी कंपनीज बैठी हुई हैं, ये क्यों नहीं स्विच करती? तो उसकी रीजन ये होती है कि उनका प्रोडक्ट जो है ना वो एक मेच्योर प्रोडक्ट है। वो नई नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर अगर मूव करेंगे तो उनको जो बग्स हैं बहुत ज्यादा फिक्स करने पड़ेंगे, और अल्टीमेटली आपने कंपनी की साइड से नहीं, आपने कस्टमर के साइड से सोचना होता है। कस्टमर आपका एक अमेरिकन डॉक्टर हो सकता है, कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो सकती है, इस तरह हम लोग काम काज करते हैं BMW के साथ, डैimler, मर्सिडीज वगैरह के साथ, फोर्ड के साथ, ठीक है। तो आपने कस्टमर को ज़हन में रख के सोचना है। आप खुद सोचो फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास बैंक अल-फलाह का या SCB का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, और आप क्रेडिट कार्ड यूज करना चाह रहे हो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू या ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, और आपको हर टाइम जब भी लॉगिन करो हमेशा आपको सर्वर डाउन ही मिले, तो आपका आगे से एक्सपीरियंस क्या होगा, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट बीच में हम थोड़ी बहुत चैट को भी देख लेते हैं। डेटा साइंस, बिल्कुल जी, हम डेटा साइंस के ऊपर भी दानिश कामकाज करते हैं, बट डेटा साइंटिस्ट की तो हमारे पास इवन आजकल ओपनिंग्स भी आई हुई हैं, ठीक है। सो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा आगे जाके जो है ना वो बातचीत करते हैं, ठीक है। सो हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि जो मेच्योर प्रोडक्ट्स होती हैं, दे वांट टू गो फॉर रिलेटिवली स्टेबल लैंग्वेजेस, ठीक है। अच्छा, आजकल इंडस्ट्री के अंदर इतनी सारी जॉब्स आ चुकी हुई है ना, क्योंकि मैं चाहूंगा कि इस पूरी डिस्कशन के अंदर हम फोकस करें करियर डेवलपमेंट, करियर प्रोग्रेशन, और मोस्ट ऑफ ऑल वो जिस तरह हम CV राइटिंग, जॉब हंटिंग, जॉब सर्चिंग, हाउ टू गिव द इंटरव्यूज, उसके ऊपर भी आएंगे, ठीक है। लेकिन साथ साथ जो मैंने पॉइंट्स कुछ अपने बनाए हुए हैं रिगार्डिंग द करंट ओपनिंग्स, मैं वो भी आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, ठीक है। आजकल इंडस्ट्री के अंदर इतना बूम आया हुआ है फॉर द रीजन दैट वी गाइस आर वर्किंग फ्रॉम होम, कंपनीज के अंदर ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, आपको कोई बिजली के बिल उस तरह के नहीं आ रहे होते, सो दे हैव लार्जर चंक ऑफ रेवेन्यू टू इन्वेस्ट बैक ऑन हायरिंग। प्रोजेक्ट्स भी ज्यादा आ रहे हैं बिकॉज इंडिया और चाइना की मार्केट डाउन हुई है जरा IT की वजह से, कोरोना की वजह से, तो हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ ऑल हमारी अपनी भी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और बहुत सारे जो यंग ग्रेजुएट्स हैं वो भी निकल रहे हैं, तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज भी काफी ग्रो कर रही है। अच्छा, ये चीजें होंगी। अब हम आते हैं कि आप लोगों की जो जो स्पेसिफिक फील्ड्स हैं
उसके अंदर आप लोगों ने हाउ टू अप्लाई फॉर अ जॉब, रेज्यूमेस कैसे आप लोगों ने डिजाइन करनी है, जॉब हंटिंग कैसे करनी है, और जब जॉब हंटिंग करके अप्लाई कर दोगे सीवी स्क्रीनिंग के लिए आपको कॉल भी आ जाती है, तो आप लोगों ने आगे से कैसे उसको डील करना है और इंटरव्यू कैसे करना है। बिकॉज जॉब अप्लाई करना और सिलेक्ट होना तो एक स्टेज है, सबसे मुश्किल पार्ट शुरू होता है जब इंटरव्यू और इवेल्युएशन होती है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे रेज्यूमेस का। आई वुड रिक्वेस्ट एनी वन ऑफ यू, बेशक कोई 2 या 3 सीवीज अगर हम यहाँ पर ही शेयर कर सकें मैसेजेस में अगर हो सकते हैं, या कोई अपनी स्क्रीन शेयर करके ओपन कर ले। बेशक मारिए अगर आप कर सकती हैं, आपके पास रेज्यूमेस हो तो आई वुड लाइक टू रिव्यू। बेशक यूनिवर्सिटी का अपना कोई फॉर्मेट है जिसके ऊपर आप रेज्यूमे बनाते हो या नहीं बनाते, तो हम पहले वहां से डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। वैसे तो हमने सारे स्टूडेंट्स को कहा हुआ है कि अपना रिज्यूमे रेडी रखें टू शेयर ऑन लाइक स्क्रीन शेयर कर लें, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो काइंडली मुझे बता दें, मैं किसी का भी ओपन कर लेती हूँ। सबके रिज्यूमेज मेरे पास अवेलेबल है एट द मोमेंट। मरी किसी एक का ओपन कर लें आप स्क्रीन शेयर करके। जी सर, बिल्कुल मैंने शेयर कर दिया। बिल्कुल ठीक हो गया नासिर, थैंक यू सो मच। ये वाला फॉर्मेट जो है ना आजकल हम लोग बहुत कॉमन देखते हैं, और आई पर्सनली लाइक दिस फॉर्मेट फॉर द रीजन बीइंग कि ये बड़ा कंसाइज एक पेज के ऊपर आ जाता है। यूजुअली जब फ्रेशिस की रेज्यूमे 2 या 3 पेजेस के ऊपर जा रही होती है ना, तो हमारे लिए इवैल्यूएट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अब जो कुछ फीडबैक मैं आपसे शेयर करूंगा, आप लोगों ने वो खुद एक तो नोट डाउन भी करनी है, ऑब्जर्व भी करनी है, और आपने हमेशा किस एंगल से सोचना है, कैंडिडेट के एंगल से नहीं सोचना। जब सीवी आप बना रहे हो तो आपने इंटरव्यूअर या एम्प्लॉयर के एस्पेक्ट से सोचना है कि यार अगर नासिर साद की जगह पे होता और साद अप्लाई करता तो नासिर को ये सीवी कैसा लगता। आपने हमेशा इस पॉइंट ऑफ व्यू या इस फ्रेम ऑफ माइंड से सोचना होता है, ठीक है। फैक्ट चेक फटाफट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। रिमेंबर कि जितना ज्यादा सीवी के अंदर क्लटर होगा, क्लटर का मुराद है कि अगर आपने लंबी लंबी बातें और एसेज लिखे होंगे, आपका अटेंशन स्पैन खत्म हो जाएगा। बिकॉज हमारे पास एक दिन में कम अज कम डेली बेस के ऊपर 150 से 200 रेज्यूमेज आ रहे होते हैं डिफरेंट जगहों से। आप ईमेल के थ्रू, हार्ड फॉर्म में, रोजी से, लिंक्डइन से, हमारे पास करियर पेज है वहां से, इंटरनल रेफरल होता है। तो रिक्रूटमेंट टीम हर वक्त है ना वो बम्बार्डेड होती है हम लोग, ठीक है। मैं अगर आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो मेरे पास इस वक्त भी इवन इनबॉक्स के अंदर अबव 900 ईमेल्स हैं रेज्यूमेज की, जो कि मैंने अभी तक देखी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि 100 काम साथ चल रहे होते हैं, हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम हर चीज फॉरन प्रोसेस करते हैं। सो इट टेक्स टाइम नॉर्मली, ठीक है। लेकिन मार्क किया होता है वो हम प्रोसेस करते जरूर हैं, टच पे जरूर करते हैं। लेकिन जो यू कैन जस्ट वेल इमेजिन कि फॉर एन इंटरव्यूअर या फॉर अ रिक्रूटर मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड का एक टाइम स्पेन होता है जब आपकी वो रेज्यूमे देखता है, और उसके अंदर वो अपना माइंड बना लेता है कि यार ये रेज्यूमे प्रोसेस करने वाली है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं नासिर की रेज्यूमे देख रहा हूँ तो इन्होंने ओपनिंग बिल्कुल अच्छी की हुई है, एक पिक्चर है। आई वुड रिकमेंड कि थोड़ी सी प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए, बिकॉज आपका उसके अंदर कैजुअल बिहेवियर नजर ना आए। या तो पिक्चर लगाई ना, अगर लगानी है तो इट हैज टू बी अ प्रोफेशनल पिक्चर विच गिव्स आउट अ प्लेजेंट फील कि यार हाँ जिस बच्चे ने अप्लाई किया है वो एक मेच्योर पर्सनैलिटी है, एक अच्छी अपीयरेंस है, ठीक है ना। हम किसी की अपीयरेंस के बारे में इस तरह बात नहीं कर रहे, लेकिन एक प्रेजेंटेबल फील है, ठीक है। आपका नाम बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, डेजिग्नेशन जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो वर्चुअल असिस्टेंट आपने वो भी लिखी हुई है, एंड मोस्ट ऑफ ऑल आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, लिंक्डइन का आईडी बहुत अच्छा किया है, ये सब कुछ आपने गिवन है। नीचे आ जाते हैं, आपने जो अपनी ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है ना, यूजली क्या होता है कि बच्चे सिंपली करते हैं कॉपी पेस्टिंग। नॉर्मली हम इतना टाइम देते नहीं है अपनी रेज्यूमे राइटिंग के ऊपर, और जो किसी दोस्त से आपकी बनी होती है वो सिंपल ऑब्जेक्टिव लिख के जो है ना कॉपी पेस्ट कर देते हैं। किसी भी इंटरव्यूअर के लिए किसी को जज करना हो ना, 2-4 मोटी मोटी चीजें होती हैं, क्योंकि इतनी रेज्यूमेज आ चुकी होती हैं, तो हमें एक किस्म के सिर्फ पॉइंट चाहिए होते हैं कि कहाँ पर ये बंदा लैग कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर यूएमटी की 150 प्रोफाइल्स अगर आ गई हुई है ना, तो मैं मोटी मोटी चीज देख लूंगा। डिग्री आपने लिख दी है, वेरी गुड। फर्स्ट ईयर लिख दिया आपने कॉलेज का, स्कूलिंग का लिख दिया, टेक्निकल स्किल्स लिख दिए, एक्सपीरियंस लिख दिया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी वाइटल डिटेल्स अभी भी मिसिंग है।
for a young graduate, you guys need to mention your CGPAs, your score in intermediate and your score in metric. ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास अभी कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। आप बेशक लिख लो कि जी आपने गूगल में काम किया या फेसबुक पे काम किया है, एज ए यंग ग्रेजुएट आपको फ्रेश ही बिल्कुल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, सो एक्सपीरियंसेस आप जहां मर्जी के लिख दें, लेकिन डिटेल जो होती हैं आपकी CGPA वाइज, मार्क्स वाइज, वो लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज ऑब्वियसली वी वांट टू नो कि बच्चे ने एकेडमिकली कैसे परफॉर्म किया है। CGPAs और मार्क्स जो हैं ये कोई क्राइटेरिया नहीं होते, ये बिल्कुल भी क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ये एक पैटर्न जरूर डिफाइन करते हैं। हमने आज तक किसी को CGPA की बेस पे हायर नहीं किया और ना कोई और कंपनी करती है। ये सबसे पहले बच्चे यही पूछते हैं कि जी मेरा CGPA 2.5 है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, एटलीस्ट वो इन्फॉर्मेशन मेंशन तो करो ना। अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो एक फील ये आती है कि यू डोंट वांट टू मेंशन बिकॉज आपका एक्सपीरियंस या आपके मार्क्स बहुत बुरे रहे हैं। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं कि जो मैट्रिक में या इंटर में बड़े अच्छे मार्क्स देते हैं, यूनिवर्सिटी में जाके उनका CGPA गिर जाता है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी में या मैट्रिक में अगर मार्क्स कम हो तो ये कोई बुराई नहीं है, हर इंसान के अपने हालात होते हैं। हम उनसे इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं कि यार आपके इंटर के अंदर बड़े अच्छे मार्क्स है, मैट्रिक में बड़े अच्छे मार्क्स है, बैचलर्स में 2.2 या 2.5 है, तो क्या इश्यू हो गया है? वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एवरीवन इज गोइंग थ्रू अ डिफरेंट लाइफ। जैसे मेरी जिंदगी है, आपकी जिंदगी नहीं है, मारिया की जिंदगी वैसी नहीं है, किसी और की जिंदगी वैसी नहीं है। हालात मुश्किल हो सकते हैं, कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आ सकते हैं, तो यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन कि जी कोई अगर CGPA मेरा कम था तो हाँ कोई फैमिली में ट्रेजेडी हो गई थी, आई हैड हेल्थ कंसर्न, या जी बहुत मसले आ गए थे तो मुझे अपनी सेमेस्टर फ्रीज करके मुझे जॉब करनी पड़ी थी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। इश्यूज कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपको उसको जस्टिफाई करना होता है। ठीक है, और ये भी नहीं है कि झूठ बोल दो, बिकॉज वो चीज पकड़ी जरूर जाती है। सो झूठ कम से कम नहीं बोलना। सो नंबर 1 ये चीज। थोड़ा सा नासिर आप ऊपर ड्रैग कर लेते हो इसको, स्क्रॉल अप। हाँ, अच्छा, ऑब्जेक्टिव के अंदर देखो, अगर मैंने किसी से डिटेल में जाना होगा ना, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि यार ये जो तुमने ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है ना, ये देखे पहले मुझे पढ़ के सुनाओ कि तुमने क्या लिखा हुआ है। और आई कैन अश्योर यू 99.99% लोगों को याद भी नहीं होता कि उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ था। जस्ट रिमेंबर कि ऑब्जेक्टिव इज द ओपनिंग लाइन इन योर रेज्यूमे, जो कि लोगों को ना तो याद होती है ना पता होती है कि मैंने क्या लिखा हुआ है। और मैं जब कहता हूँ ना कि मुझे एक लाइन में सिर्फ वर्ड टू वर्ड नहीं, एक्सप्लेन कर दो कि तुमने अपने CV में ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ है, तो वो बच्चों को याद भी नहीं होता कि उन्होंने क्या लिखा था। ठीक है जी, तो इसलिए मेक श्योर कि ऑब्जेक्टिव वो लिखें जो कि बिल्कुल सिंपल सा भी हो, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर लिखनी होती है। मोटे मोटे हैवी चंक्स वर्ड्स उसके अंदर लिखें ताकि अगला बंदा पढ़ के बहुत इंप्रेस हो जाए। आपकी इन बातों से कोई इंप्रेस नहीं होगा। इंप्रेसिव तब होगा जब आप टेक्निकली साउंड होगे और जब काम पे आके परफॉर्म करना शुरू होगे। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव सिंपल, क्लियर और ऑब्जेक्टिव टाइप होना चाहिए, जिसको प्रॉपर्ली आप लिखो तो आप अचीव भी करना चाहो। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम फर्दर आगे आ जाते हैं। आपने एजुकेशनल डिटेल्स अपनी डाल दी। अच्छा, एक चीज जो मैं पहले भी बातचीत कर रहा था कि रिक्रूटर के लिए अटेंशन स्पैन जो है ना, सीरीज देखते हुए बहुत लिमिटेड होता है, 10 से 15 सेकंड। ठीक है, सो मेक श्योर कि बहुत ज्यादा क्लटर ना हो, लंबी लंबी बातें, प्रोजेक्ट की डिटेल्स उस तरह की ना लिखी हो, टेक्नोलॉजी वाइज, टूल्स वाइज जो आपने काम काज किया हुआ है उसको एक प्रॉपर सेग्रीगेट किया हो कि यार ये स्किल सेट है और मैं इस तरह की जॉब देखना चाह रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि कुछ लोग डेवलपमेंट में जाते हैं, कुछ QA के अंदर, कुछ डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार आप वेब डेवलपमेंट के अंदर या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो, लेकिन मार्केट के अंदर जॉब जो है ना एकदम से सिस्टम्स की निकल आई हैं, अच्छी कंपनी है, नेटसॉल की अच्छी जॉब्स आ गई हैं और वो QA बेस्ड हैं, और मैं तो एक्सपीरियंस मतलब प्रोफेशनल फ्रेश कैंडिडेट हूँ, मुझे आप QA में डाल दो, डेव में डाल दो, डेटाबेसेस में डाल दो, मैं तीनों के अंदर मुझे इंटरेस्ट है, मैं तीनों में काम कर लूंगा। ठीक है, सो मेक श्योर कि यू क्रिएट मल्टीपल वर्जन ऑफ योर रेज्यूमे, क्योंकि जिस तरह की अपनी प्रोफाइल लिखी होगी स्किल सेट वाइज, रिक्रूटर जो है वो उसी के ऊपर ही फोकस करेगा। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट्स या FYP लिखा हुआ है कि जी मैंने .NET डेवलपमेंट की है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है, तो रिक्रूटर ज़हन में सोचेगा कि यार ये बंदा इंटरेस्टेड है वेब डेवलपमेंट के अंदर, और मेरे पास तो अभी कंपनी में कोई डेवलपमेंट की जॉब ही नहीं है, मेरे पास तो QA की है। सो नासिर की प्रोफाइल
को मैंने 10 सेकंड दे दिए हैं 900 प्रोफाइल्स में से, लेकिन नासिर मेरे लिए रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास वेब डेवलपमेंट की जॉब नहीं है और नासिर ने अपने प्रोजेक्ट स्पेसिफाई किए हुए थे या टूल एंड टेक्नोलॉजी लिखी हुई थी .NET वगैरह या C# लिखी हुई। सो मैंने नासिर को सिंपली उस बॉक्स में डाल के देखा है कि ये फिट नहीं हो रहा, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट जॉब। ठीक है, बजाय इसके कि नासिर क्या करे कि नासिर 2 वर्जन बना के ना दोनों सेपरेट ईमेल कर दे। एक दिन ईमेल कर दे नासिर वेब डेवलपमेंट के लिए और सेम डे शाम को या अगले दिन ईमेल कर दे कि जी आई वांट टू अप्लाई फॉर SQA इंजीनियर। मैंने बग टेस्टिंग की हुई है, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, मैंने lynda.com पे या कोर्सिया के ऊपर जाके मैंने एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक कोर्स भी लिया हुआ है, कोई 5 आवर्स का या 3 आवर्स का। तो ट्राई करो कि थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक अपनी आप प्रोफाइल बना दो, ताकि लेट सपोज अगर आज मैंने चेक किया नासिर की रेज्यूमे कि ये डेवलपमेंट रिलेटेड है और मेरे पास तो QA बेस्ड जॉब है, सो सॉरी रिजेक्टेड, अगले पे चलें। और हो सकता है कि वेरी नेक्स्ट डे में चेक कर रहा हूँ फिर से रेज्यूमे और नासिर की मेरे सामने फिर से आ गई है और उसमें उसने लिखा हुआ है कि वो QA के लिए अप्लाई करना चाह रहा है। सो वहां पर मैं उसको मार्क कर दूंगा कि हाँ यार नासिर का इंटरेस्ट है, इसने टूल एंड टेक्नोलॉजी भी लिखी हुई है, सो नाउ वी कैन शॉर्टलिस्ट हिम फॉर SQA डिपार्टमेंट। सो आपका शॉर्टलिस्टिंग की एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी या चांस बढ़ गया है, इंश्योर नहीं हुआ, एटलीस्ट प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गई है। सो मेक श्योर कि आपने जब भी अप्लाई करना हो मल्टीपल वर्जन बना लो। अच्छा, लेकिन उसके लिए फिर आपने तैयारी भी वैसी करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप .NET का इंटरेस्ट है बिल्कुल, SQA के लिए बस अप्लाई कर दिया है कि जी इंटरव्यू दूंगा और इंटरव्यू वाले को बोल दूंगा कि जनाब मैं .NEट पे जाना है, डेवलपमेंट करनी है, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है ना, अगर आपका इंटरेस्ट है और अगर उस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करना चाहते हो तो तब आपने जरूर अप्लाई करना है। एंड मेक श्योर, जिस तरह मैंने पहले अपना एक वो स्टोरी सुनाई थी मार्केटिंग वाली और मैं HR में जॉब कर रहा हूँ, तो मेरी भी 3 प्रेफरेंसेस थी। Number 1 was marketing, number 2 was HR, number 3 was procurement. So मैंने 3 चीजें प्लान की हुई थी कि अगर मुझे अपना करियर डेवलप करना है तो इन चीजों के अंदर ही करना है। So make sure कि you guys work on contingency planning as well. Contingency का मतलब ये कि आप बैकअप प्लान रखो कि यार मैं डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, अगर लेट सपोज मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, मुझे कोई जॉब नहीं मिलती डेटा साइंटिस्ट की, तो काम तो करना है, तो फिर मैं दूसरी किस और जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? मैं डेटाबेसेस में जा सकता हूँ, मेरा उसमें स्किल सही है, या मैं मशीन लर्निंग की तरफ चला जाऊँ, या मैं क्या काम कर सकता हूँ? सो मेक श्योर कि अपने भी आप प्लान रखो एंड कीप योरसेल्फ ओपन। अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल विंडो जो है ना वो बंद ना कर दो, कीप योरसेल्फ ओपन फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है, अच्छा नासिर कैन यू प्लीज स्क्रॉल डाउन अ लिटिल, मैं आपकी CV का नीचे वाला पार्ट देखना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, एक्सपीरियंसेस वर्चुअल असिस्टेंट फाइवर के ऊपर आपने प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट आपने की हुई है, बिल्कुल ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स मेंशन कर दिए हैं, टाइम मैनेजमेंट, क्रिएटिव एंड कम्युनिकेशन, ठीक हो गया। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर ये देख लो कि अगर आप ये बातें लिखोगे ना तो आपने इसको जस्टिफाई भी करना होता है। कोई चीज ऐसी ना CV के ऊपर लिख दे करें। इंटरव्यू के अंदर जो है ना एक ही काम होता है, सिर्फ आपका जो टेक्निकल नॉलेज है वो चेक किया जाता है। 2 चीजें होती हैं, CV के ऊपर जो नंबर 1 काम है वो आपका टेक्निकल नॉलेज चेक किया जाता है इंटरव्यू के अंदर, और दूसरा पार्ट ये होता है कि जो आपने CV के अंदर बातें लिखी हुई हैं उसको डिफेंड करना होता है। सो अगर आपने किसी से इंप्रेस होकर दोस्त की अगर अच्छी कम्युनिकेशन है, इंग्लिश स्पोकन अच्छी है, तो उसने लिखा हुआ है सॉफ्ट स्किल के अंदर गुड कम्युनिकेशन, गुड राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स, ठीक है, या लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल्स। सो आपको कम्युनिकेशन उतनी इफेक्टिव नहीं है लेकिन आपने भी लिख दिया है, ठीक है। सो अगर सॉफ्ट स्किल्स लिखे होंगे ना यहाँ पर कम्युनिकेशन, तो आई वुड प्रिज्यूम कि आपकी इंग्लिश स्पोकन, रीडिंग एंड राइटिंग अच्छी है। तो मैं आपसे फिर उसी लेवल के ऊपर जाके क्वेश्चंस करूंगा या उसी लेवल की मेरी एक्सपेक्टेशन बन जाएगी, क्योंकि जो आपने मुझे अपनी इमेज दिखाया CV का, वहां से मेरा परसेप्शन डेवलप हो गया है। सो बातें वो लिखनी है जो कि सच्ची हो और जिनको आप डिफेंड कर सको। अगर आपने लिखा है सॉफ्ट स्किल्स के टाइम मैनेजमेंट, तो नासिर से मैं क्वेश्चन कहता हूँ, नासिर गिव मी एनी सिनेरियो वेयर यू यूज योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। नासिर ये एक सही का क्वेश्चन है, आप कोई सिनेरियो शेयर कर सकते हो जहां पर आपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स यूज किए थे अपने? जी सर, अगर कोई प्रोफेसर कोई प्रोजेक्ट टास्क देता है
तो सर मैं उसे पूरे टाइमली कंप्लीट करता हूँ, ये नहीं सोचता कि भाई ये मैं टाइम आने पे कर लूंगा, मैं उसे हमेशा पहले करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। इस बात के अंदर जो आइडिया है वो ठीक है, लेकिन जिस तरह आपने बात कन्वे की है वो गलत है। ठीक है, वो कैसे गलत है? आई होप कि सब लोग सुन रहे हैं, किसी को पार्टिसिपेट करना है, बात करनी है, नींद वगैरह नहीं आ रही तो याद रहा कि हमारी डिस्कशन नहीं होगी तो थोड़ा सा बोर भी हो सकते हो। ठीक है, अ, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि आइडिया आपका बात करने का बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो वर्ड्स आपने यूज किए हैं ना वो गलत है। कभी भी जब कोई बात करनी है तो जेनेरिक सेंस के अंदर बात नहीं करनी कि देखें जी, जब भी कोई मुझे प्रोफेसर काम दे, जब भी कोई प्रोजेक्ट हो वो मैं कर लेता हूँ। यू नीड टू बी प्रिसाइज, टू द पॉइंट, और आपने हर चीज को बड़ा रेलिवेंट होकर बात करना है कि जी सर मेरा FYP था, मैं रिसेंट एग्जांपल आपको उसकी दे सकता हूँ। मेरा FYP था वेब डेवलपमेंट का। ठीक है, हमारे पास टाइम पीरियड था 2 मंथ्स का। 2 मंथ्स के लिए हमने अपने पूरा प्रोसेस डिवाइड कर दिया हुआ था, और बीच में हमें एकदम से इन्फॉर्म किया गया कि हमारे पास 2 मंथ्स नहीं है, हमारा टाइम कम होके 1 महीने का हो गया। सो आई हैड टू वर्क ऑन द डेडलाइन। काम फिर से हमने रीस्ट्रक्चर किया, रीऑर्गेनाइज किया, और हम लोगों ने जो 2 महीने का काम था वो हम लोगों ने डिवाइड करके टाइमली मीट किया, और 1 महीने के अंदर हमने पूरा काम करके अपना FYP सबमिट करा के हर चीज खत्म। तो आई कैन गिव यू दैट एग्जाम्पल कि वहां पर मैंने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अपने यूटिलाइज किया। ठीक है, अब जो मैंने बात कन्वे की है आई वॉज वेरी प्रिसाइज, और जो आपने बात की है वो बहुत ही जेनेरिक थी। इंटरव्यूज के अंदर आपने जेनेरिक बातें नहीं करनी होती, जेनेरिक बात हर कोई करता है। ठीक है, जिस तरह अभी हम ये सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहे हैं ना, एक जेनेरिक बात और ही बड़ी होती है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है यार, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। इतना ये मतलब बेसिक क्वेश्चन है जो कि हर इंटरव्यूअर पूछता है। ठीक है, जस्ट टू नो यू। और उसके अंदर कहा जाता है कि जी वी आर हार्ड वर्किंग, वी आर ऑनेस्ट एंड वी आर डेडिकेटेड। अब आप मुझे खुद बताओ, कोई इंसान बोलेगा कि जी मैं हार्ड वर्किंग नहीं हूँ, या मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ, या मैं डेडिकेटेड नहीं हूँ? कोई भी नहीं कहता। लेकिन बात करने में दिस इज अ वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट। ठीक है, आप कह सकते हो कि जी आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, लेकिन ट्राई टू गिव एन एग्जाम्पल एज वेल। एग्जाम्पल क्यों देनी है? ताकि जो आपने बात या अपना स्किल सेट बताया है उसको आप जस्टिफाई भी करो। जस्टिफाई कैसे करोगे? सर आई एम एक्सट्रीमली हार्ड वर्कर, मैं अपनी डेडलाइंस मीट करता हूँ, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अगर कोई मुझे काम असाइन करता है तो मुझे लीज सुपरविजन रिक्वायर्ड होती है, मैं खुद काम करने के लिए उस बंदे के पीछे पड़ता हूँ कि मैं ये काम बार बार करूँ, आपको मेरे से ना पूछना पड़े, उल्टा मैं कहीं पे स्टक हूँ तो मैं जाके अप्रोच करूँ। और इसकी एग्जांपल ये है रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड या हार्ड वर्किंग का, कि ड्यूरिंग माय बैचलर्स देयर वर सम पर्सनल प्रॉब्लम, और कुछ फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट का मसला पड़ गया था। सो अपार्ट फ्रॉम माय एजुकेशन आई हैड टू डू अ पार्ट टाइम जॉब। मैं 8 to 4 यूनिवर्सिटी में होता था, और फिर शाम 5 to 9 में एक पार्ट टाइम जॉब करता था, और ये चीज मैंने 1-1.5 साल की है, जस्ट टू सपोर्ट माई सेल्फ, माई एजुकेशन, कि मेरी फैमिली के ऊपर जो है ना बर्डन उस तरह का ना पड़े। ठीक है, सो इस एग्जाम्पल से मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ कि आई एम रिस्पॉन्सिबल और मैं हार्ड वर्कर। ठीक है, सो आपका स्किल सेट भी जस्टिफाई हो गया, लेकिन साथ में आपने एक एग्जाम्पल भी दी। ठीक है, वो नहीं है कि अगर आप कह रहे हो कि जी हाँ मैं अगर ऑनेस्ट हूँ तो जस्टिफाई करो कि आप ऑनेस्ट कैसे हो। सो स्किल सेट आपके डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं जो आपकी इनबिल्ट पर्सनैलिटी है। थर्डली, एक चीज मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करूंगा कि कुछ टाइम लेके ना, दुनिया की ये जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब से हट के ट्राई टू फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ। कभी 15 मिनट, कभी आधा घंटा बैठ के सिर्फ अपने बारे में सोचो कि आप एज ए ह्यूमन कैसे हो, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। ये इंसान कभी अपने आप से नहीं पूछता कि मैं इंसान कैसा हूँ। और ये आपने सोचना है किसी और के पर्सपेक्टिव से, अपने घर वालों के पर्सपेक्टिव से नहीं, अपने पर्सपेक्टिव से नहीं, किसी लेमैन के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, क्योंकि ये इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस होते हैं कि नासिर, या कोई भी बंदा हो सकता है, मारिया, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ एज अ पर्सन? आप कैसे इंसान हो? अब ड्यूरिंग द इंटरव्यू नॉर्मली हर इंसान अपना बेस्ट बिहेवियर देता है कि जी मेरे से अच्छा इंसान ही कोई नहीं है, मैं बेस्ट इंसान हूँ। ठीक है, लेकिन एलैबोरेट तो करो, क्योंकि आगे बहुत सारे सिनारियो से हम रिलेट कर लेते हैं कि ये बंदा जिसने बातें की हैं, ये इसने सिर्फ अपने आप को हाई सेल कर रहा है, या इसके अंदर कोई कंटेंट भी है या नहीं था। ठीक है, सो ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ। कभी अपने बारे में सोचो कि यार अगर मेरे से क्वेश्चनिंग होती है कि डिस्क्राइब योर सेल्फ, तो मैंने क्या कैसी बातें करनी है। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स जो है ना वो ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं।
आप लिंक्डइन के ऊपर जा सकते हो, गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे जा सकते हो। उसके ऊपर एग्जैक्टली लिखा होता है कि यार आपने कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करनी है और आपने अपने बारे में कैसे अपने आप को सेल करना है। आपका इंटरव्यू जो है ना, दिस इज मोर लाइक मार्केटिंग गिमिक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कैंडिडेट जो है ना, इट्स अ प्रोडक्ट, ठीक है, और कंपनी है, इंटरव्यूअर जो है ना वो बायर, ठीक है। और हम आपको बेसिकली जस्ट लाइक अ प्रोडक्ट वी आर ब्रिंगिंग यू ऑन बोर्ड, आपको परचेज कर रहे होते हैं, एंड यू हैव टू सेल योरसेल्फ। कि अगर मैं किसी कंपनी में जाता हूँ तो जी साद के अंदर क्या स्किल सेट है, ये अब आप क्वेश्चन थोड़े बहुत अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। कि साद एज ए कैंडिडेट और यू गाइज एज ए कैंडिडेट, आपका करंट क्या स्किल सेट लेवल है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ ऑल, हाउ कैन यू गाइज एड वैल्यू टू द कंपनी, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। आई वुड रियली वांट कि आप सब लोग इसके ऊपर इंडिविजुअल रिसर्च करो, और ये इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन होता है, हाउ कैन यू गाइज एड वैल्यू टू कंपनी। कि यार देखो, आप 5 कैंडिडेट, तो हो सकता है कि मैं आप पांचों को इंटरव्यू करूं और मेरे पास पोजीशन सिर्फ एक हो, और हर बंदा बोले कि जी मैं डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग, ये वो, मेरे से अच्छा और कोई बंदा नहीं, लेकिन ओपनिंग तो मेरे पास एक है, और सब आप सबका सीजीपी भी सेम है, सबका स्किल सेट लेवल भी सेम है, सो हाउ कैन आई डिफरेंशिएट। दैट इज वेयर यू गाइज हैव टू सेल योरसेल्फ। आपने कन्विंस करना है कि जी मैं क्यों सबसे अच्छा हूँ। दो टर्म्स होती है मार्केटिंग में, एक होती है पॉइंट ऑफ पैरिटी और एक होती है पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको पीओपी और पीओडी कहते हैं। पॉइंट्स ऑफ पैरिटी क्या होती है? पॉइंट्स ऑफ पैरिटी होती है कि वो एस्पेक्ट्स या वो फीचर्स जो कि कॉमन होते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट में हो जाए, इंसानों में हो जाए, कि हर चीज कॉमन है। आप सब में कॉमन क्या है कि आप यूएमटी से पढ़े हुए हो, आप सब ने कंप्यूटर साइंसेज की हुई है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, आप सब लोगों का सीजीपीए बिटवीन 3 to 3.5 है, आप सब लोग फ्रेश ग्रेजुएट हो, तो ये आप लोगों के पॉइंट्स ऑफ पैरिटी हैं। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन पीओडी विच इज पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन। कि भाई आपके अंदर यूनिकनेस क्या है, आपके अंदर डिफरेंशिएशन क्या है, एक दूसरे से किस तरह अच्छा है या दूसरा तीसरे से किस तरह अच्छा है। तो ये बातें आपने बतानी है, ये हम नहीं आपको बता सकते, बिकॉज हर इंसान डिफरेंट है। आप अपने आप को कैसे जस्टिफाई करते हो, अपनी प्रोफाइल कैसे एक्सप्लेन करते हो, ये आप पे डिपेंड है। सो अगर किसी को ये लग रहा है कि जनाब आपको कोई एक इंटरव्यू सेशन के अंदर इस तरह की यूनिक बातें बता देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई कैन ओनली गाइड यू कि किन चीजों के बारे में आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, और उस चीज के बारे में करने के बाद आपने खुद उसको अपने जहन में कंस्ट्रक्ट करके सेंटेंस डेवलप करके किस तरह कन्वे करना है। क्योंकि मैं आपको कहने को वो बातें बोल तो दूं, लेकिन वो आइडिया मेरा होगा, वो वर्ड्स मेरे होंगे। आपने किसी को अगर एक्सप्लेन करना है, कोई अगर इंसान क्रॉस क्वेश्चन करेगा, तो आप उस आइडिया को या उस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकोगे कि आपको उसके पीछे फिलॉसफी क्या है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई एक्चुअली वांट कि आप सब लोग इन बातों के बारे में सोचो कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, आप के क्या यूनिक एस्पेक्ट्स हैं, आप किस तरह कंपनी में जाके वैल्यू एडिशन करोगे, और इसके अलावा कि आप लोगों का लॉन्ग टर्म विजन और गोल क्या है। कि अगर आज आप कंपनी में आते हो तो आपका बस मेन मकसद या मेन मोटिवेशन क्या है, बस पैसा कमाना है। इस एस्पेक्ट के ऊपर जो नई कंपनीज है ना, वो बड़ा फोकस करती हैं कि इंसान के पीछे थॉट प्रोसेस जो है या उसकी फिलोसफी क्या है। काम तो हम हर इंसान से करवा सकते हैं, काम तो हम एक रोबोट ले आए, उसके अंदर हम कोडिंग कर दें कि भाई दिन रात उसने बैठ के ये सफा पलटाना है या कोडिंग करनी है, तो वो रोबोट भी कर लेगा। लेकिन अगर एक इंसान लेके आ रहे हैं, एक अशरफुल मखलूकात है, दिमाग है उसके पास यूज करने का, तो वो फर्दर क्या अचीवमेंट्स या क्या इनोवेशन लेके आ सकता है, ठीक है ना। कंपनीज के अंदर क्योंकि इंसान काम करते हैं, इंसानों को मैनेज करना होता है, इसलिए ह्यूमन बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप आपस में किस तरह अपने कोलीग से मिलते हो, किस तरह रिस्पेक्टेबल रहते हो कि नहीं रहते, बिहेव कैसे करते हो, ये चीजें आपका इवन करियर भी डिफाइन करता है। एट टाइम्स बहुत दफा ऐसे होता है कि बंदा मे बी टेक्निकल अच्छा ना हो, लेकिन क्योंकि उसका एटीट्यूड रिस्पेक्टेबल है या वो रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है, डिपेंडेबल इंसान है, तो उस फिर भी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। तो मैं आपसे सिनारियो शेयर कर लेता हूँ। ऐसा इंसान जो कि टेक्निकल बहुत अच्छा हो लेकिन डिपेंडेबल ना हो। डिपेंडेबल का मतलब ये है कि जब उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो ऑफिस में ये काम करे, वो बंदा तभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वो जी मेरे काम था, मैंने छुट्टी कर ली है, वो खाला की तरफ कोई काम काज था, ये था वो था, मतलब कोई अपने पर्सनल कामों के अंदर पड़ा हो।
हैबिचुअल हो इस चीज के अंदर, सो वो बंदा जो कि टेक्निकल साउंड है बट डिपेंडेबल नहीं है। और दूसरी साइड पे वो बंदा जो कि टेक्निकली वीक है बट ही इज डिपेंडेबल, व्हेनेवर यू वांट हिम ही इज राइट देयर टू हेल्प आउट, या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है, या बजाय से दूसरा बंदा के जो बोले कि जी मुझे टेक्निकल सब कुछ आता है लेकिन मुझे और काम नहीं चाहिए या मैं फ्री नहीं हूँ, सो अल्लाह हाफिज। सो जो दूसरा बंदा है जो टेक्निकली वीक है लेकिन डिपेंडेबल है, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि टेक्निकल नेचर का काम है, टेक्निकल नॉलेज या स्किल तो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन जो ह्यूमन स्किल सेट होता है ना, सॉफ्ट स्किल डिपेंडेबिलिटी का, वो आप हर इंसान के अंदर नहीं डाल सकते। तो ये कुछ चीजें होती हैं चेंज ऑफ माइंड की, चेंज ऑफ एटीट्यूड की। तो आप लोग मेक श्योर करना है कि वंस यू आर स्टेपिंग इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड, आपको नंबर वन अपना गोल पता हो, आपने किस किस जॉब के लिए अप्लाई करना है वो पता हो, अपॉर्चुनिटीज किस किस कंपनी में आ रही है वो पता हो, एंड मोस्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अप्रोच विद द राइट एटीट्यूड कि यार पहले जाके मुझे सिर्फ अपनी मेहनत करनी है, काम काज करना है, और जो रिवॉर्ड है या जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है दैट विल इवेंचुअली फॉलो यू। ठीक है, एक छोटी सी पर्सनल मैं आपको एक और मतलब वो बता देता हूँ, बिकॉज ठीक है हमारे मुल्क के अंदर महंगाई है, हर इंसान की फाइनेंशियल नीड्स होती हैं, एंड एवरीवन वांट्स टू हैव गुड सैलरी पैकेज, और उस वजह से बहुत दफा अच्छी अपॉर्चुनिटीज हम लोग गवा भी देते हैं जस्ट बिकॉज कि जी वो इंडस्ट्री एवरेज है, कम अज कम 80,000 मिलते हैं या 50,000 मिलता है, तो मैं तो 40 के ऊपर या इतने के ऊपर नहीं आऊंगा। ठीक है, आपका मेन पहले गोल होना चाहिए लर्निंग का एंड टू सिक्योर दी अपॉर्चुनिटी। एक दफा जॉब लगी है उसके बाद आप स्विचिंग करके फर्दर अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। जो मेरा अभी तक का पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई हैड सम वेरी लाइक गुड फ्रेंड्स जिनकी ओपनिंग सैलरी उस टाइम के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब दैट वाज बैक इन 2012, और जो तब का इंडस्ट्री का नॉर्मल स्टैंडर्ड था उससे भी 30-40 टाइम्स परसेंट ऊपर ही उनकी सैलरी थी। ठीक है, और तब बहुत फील होता था कि यार हम लोगों ने बैंकिंग में बड़ी कम सैलरी के ऊपर स्टार्ट किया है, उनकी सैलरीज बहुत अच्छी हैं, वो नेस्ले कोक के अंदर बैठे हुए हैं, ब्रांड भी बड़ा अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा, बट नाउ आफ्टर अ स्पैन ऑफ लाइक 7 to 8 years everyone is on the equal level। किसी की 5-6 हजार ऊपर नीचे सैलरी हो सकती है, किसी के बेनिफिट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट इवेंचुअली आप काम करते हो, सब कुछ करते हो, एंड नाउ वी फील लाइक यार हम सबके बेनिफिट्स भी वही हैं, हर कोई अपनी लाइफ के अंदर सेटल्ड है, सबके सैलरी पैकेजेस भी ऑलमोस्ट सेम ब्रांड के अंदर है। ठीक है ना, तो वो जो पहली एक चीज फील होती थी वो अब फील नहीं होती। सो थिंग्स डू कम, यू डू गेट द फेवर्स, यू डू गेट द रिवॉर्ड, लेकिन पहले इम्तिहान होते हैं और फिर इनाम होता है। ठीक है ना, इम्तिहान से पहले इनाम नहीं मिलता, सो पहले आपने काम करना होता है, यू नीड टू परफॉर्म गुड एंड देन यू रिवॉर्ड। यही जो है वो एक कुदरत का निज़ाम भी है। ठीक है, और नॉर्मली अगर आप देखो तो ऐसे ही होता है स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर भी और काम के ऊपर भी, कि आप पहले काम करते हो, परफॉर्म करते हो, और साल के एंड पे जाके आपके एग्जाम होते हैं, पास होते हो, या आपका एनुअल इंक्रीमेंट भी होता है। सो ये पूरे का पूरा एक नेचर का सिस्टम ही है। ठीक है जी, अच्छा मारिया, हमारा ये टाइम आई बिलीव क्या 1 घंटे का ही था, या हम इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं या हम रिवाइज कर सकते हैं इसे? Saad, ऐसा है कि that's totally dependable on you and the students at the moment, because session honestly बहुत अच्छा जा रहा है और I'm sure students काफी gain कर रहे होंगे, तो अगर आप थोड़ा सा extend भी करना चाह रहे हो तो we can do that as well। ठीक हो गया, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ सीवी को एस्पेक्ट अभी सिर्फ कवर किया है, मैं थोड़ी बहुत जो जॉब हंटिंग के है ना डोमेन्स लाइक लिंक्डइन, रोजी, मैं उसके ऊपर जरा कवर करना चाहता, लेकिन आई कैन एक्सटेंड फॉर लाइक अनदर 10 more minutes। उसके बाद मेरी जरा कॉल्स हैं, अगर आप चाहती हैं तो हम इसको सैटरडे के लिए फिर से डिटेल में एक और सेशन रख सकते हैं। ठीक है, दिन में या शाम में। बिल्कुल हम फॉलो अप सेशन को प्लान आउट कर सकते हैं, आप देख लो जितना आप कन्वीनियंटली कर सकते हो, बाकी फिर हम फॉलो अप सेशन में कर लेंगे। ठीक है, मैं अब क्योंकि सीवी के बाद जो है ना, आई होप कि सबको समझ आ गया होगा कि आपने बातें वो लिखनी, में थोड़ा सा रीकैप कर लेता हूँ कि नंबर 1 सीवी आपने डिफेंड करना है। जब आप इंटरव्यू के अंदर जाते हो तो इंटरव्यूअर कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन, उसको आप ये नहीं कह सकते कि जी ये क्वेश्चन क्यों पूछती है और वो क्वेश्चन, वो सीवी से हट के भी बहुत सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, अच्छा तो सीवी आपने ऐसा बनाना है जो कि मेक श्योर कि आपके स्किल सेट वाइज आपको प्रॉपर रिप्रेजेंट करे, शुड बी अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ योरसेल्फ, उसके अंदर वो कहानियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर कहीं से फील हो गया कि आपने जो बातें लिखी हैं वो आपने किसी से कॉपी पेस्ट की है,
स्ट्रेट अवे विद इन 5 to 10 मिनट जो इंटरव्यूअर है वो अपना माइंड बना लेता है कि इसने सिर्फ कहानियां लिखी हुई हैं और ये प्रोफाइल कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड। और ये रिमार्क्स होते हैं कि he was or she was unable to defend his or her own resume, ठीक है। सो एक वो चीज होगी, चीजों को बिल्कुल क्लियर एंड कंसाइज, और जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है लाइक योर एकेडमिक्स एज ए फ्रेशी, वो आपने जरूर लिखने हैं। मोस्ट ऑफ ऑल, जिस तरह यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात है सर्टिफिकेट्स, ठीक है, कोई अगर आपने ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशंस ली हुई हैं तो वो जरूर मेंशन करो। आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, यार देखो अब मार्केट के अंदर जॉब्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बच्चे अभी भी कहते हैं कि यार नौकरी नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तो एक चीज आपको जरूर समझनी है कि जॉब बहुत ज्यादा है, लेकिन जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है ना, ह्यूमन भी और टेक्निकली, अब वो लेवल बढ़ चुका हुआ है। वो जो लेवल है, वो जो बार है, वो रेज हो चुकी हुई है। अगर आपका पहले स्किल सेट लेट सपोज 30% वाले बंदे को भी अगर हायरिंग मिल जाए करती है ना जॉब, तो अब कम से कम वो बार चली गई है 70% पे। आप आज भी अगर बैठे हुए हो 30% पे और सोच रहे हो कि यार मुझे नौकरी नहीं मिल रही और मेरे आगे पीछे हर बच्चे को जॉब मिल रही है, तो क्या मसला है? दैट मीन्स कि यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल सेट डेवलपमेंट। और अब तो इतने सारे मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं, थोड़े से उसके ऊपर आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। हमारी मतलब कौम या हमारा माइंडसेट ऐसे है कि हम शादियों के ऊपर, खाने पीने के ऊपर जो है ना, वो 50-50 लाख भी लगा देते हैं, लेकिन ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर या सर्टिफिकेशन के ऊपर हम 5,000 भी नहीं लगाते, ठीक है। आई थिंक वी हैव सम कमेंट, मैं 1 मिनट बस देख लूं। देखो सर्टिफिकेट्स अगर आपने लिए हैं ना दानिश, कोई अगर आपने ट्रेनिंग की हुई है, तो जिस तरह मैंने पहले कहा था कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रेलिवेंट आपने इंफॉर्मेशन लिखनी है। अगर आप कोई पाइथन के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आपने पाइथन से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस किए ना, तो वो आपने मेंशन करनी है। आप दूसरी मेंशन कर भी सकते हो, लेकिन वही बात है कि वो बात इतनी ज्यादा, वो पूरा एक पैराग्राफ बन जाएगा कि वो फिर इंटरेस्ट लूज हो जाएगा कि यार इसने कौन कौन सी सर्टिफिकेशन करती है। इसका मतलब है कि आप हवा में बस तीर मारे जा रहे हो सर्टिफिकेशन के लिए, कोई आपका फोकस एम नजर नहीं आ रहा। सो लेट सपोज अगर आप पाइथन की जॉब अप्लाई कर रहे हो, अगर आपने पाइथन से रिलेटेड को 2-3 सर्टिफिकेशन की हुई हैं, तो आपकी सीवी पाइथन स्पेसिफिक ही होनी चाहिए, ठीक है। ये एक चीज समझने वाली है कि आप हर वक्त एक सीवी नहीं बना के रख सकते। डिफरेंट जॉब्स आती हैं, आपको टाइम टू टाइम अपनी सीवी के डिफरेंट वर्जन और इसको अपडेट करना या ऑल्टर करना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो ये एक चीज होगी। इससे पहले अच्छा हम थोड़ा बहुत और बातचीत कर रहे थे रेज्यूमेस के बारे में। आई विल जस्ट टेक लाइक 10 more minutes और उसके बाद फिलहाल मैं कॉल एंड कर दूंगा, और हम फिर से जो है ना कल नहीं तो हम परसों जरा एक सेशन रख सकते हैं आप सब लोगों के साथ, ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस आप जरा सोच भी लो, थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट भी कर लो, ताकि आप सब लोगों का सीवी में 1 by 1 देख भी लूँ, और जो भी इम्प्रूवमेंट होगी वो हम उसके अंदर रिकमेंड करें, ठीक है। अच्छा, तो सीवीज को हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में जरा कवर कर लिया है। टाइम टू टाइम अगर आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे तो हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे, ठीक है। बट नाउ आई वुड लाइक टू कवर द एरिया ऑफ रिक्रूटमेंट और जो आपके पास जॉब चैनल्स होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। सो नंबर 1 वी हैव रोजी, नंबर 2 वी हैव लिंक्डइन, नंबर 3 जितनी भी कंपनीज होती हैं उनके अपने अपने जॉब पोर्टल्स भी होते हैं, ठीक है। एक चीज अंडरस्टैंड करने वाली ये है कि जो जॉब हंटिंग है ना, ये कोई आसान प्रोसीजर नहीं है। ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि यार आप बस घर बैठे हुए हो और कंपनी भागी भागी आपके पीछे आएगी प्लेट के अंदर अपॉर्चुनिटी लेके कि प्लीज आके हमें ज्वाइन कर लें। इट्स अ वेरी हेक्टिक एंड इट्स अ रिगरस प्रोसेस, ठीक है। आप रियल वर्ल्ड में जाते हो प्रैक्टिकली, तो हर किस्म की आपको मतलब एग्जांपल्स मिलती हैं। ऐसे लोग भी होंगे जो कि यूनिवर्सिटी से निकले नहीं होंगे और उनके हाथ में 3-3 ऑफर्स होंगी। ऐसे लोग भी होंगे कि जी आज FYP कंप्लीट हुआ है और कल मुझे कंपनी से ऑफर आ गई है। और ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास 2-2 साल से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। दे माइट हैव बीन गिविंग अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज, लेकिन कोई भी अपॉर्चुनिटी वो सिक्योर नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो हर इंसान की स्ट्रगल और जो उनका एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट होगा। अगेन आपने किसी से अपने आप को कंपैरिजन नहीं करना, आपने अपनी इंडिविजुअल एफर्ट के ऊपर फोकस करना है। सो ये जो 3-4 मैंने आपको बताए हैं चैनल्स, यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी प्रेजेंस इन सब चैनल्स के ऊपर हो। रोजी के ऊपर अगर आप जॉब्स अप्लाई कर रहे हो
रोजी के ऊपर भी एक सीवी बिल्डर भी होता है और एक सीवी मैनेजर भी होता है। तो आपने अपनी जो भी 2-3 सीवीज अपनी बनाई हैं, अपलोड की हुई हैं, वो मैनेज कर लो, और जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो वो वाली सीवी के थ्रू आप अप्लाई कर दो, ठीक है। नंबर 2, लिंक्डइन। लिंक्डइन के ऊपर मेक श्योर कि दिस इज एन एक्सीलेंट चैनल, ठीक है। यू कैन कनेक्ट विद द इंडिविजुअल्स, आप उनसे, जो कंपनी के प्रोफेशनल लोग होते हैं, एचआर वाले, आप उनसे बातचीत कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो। हर कोई शायद आपको रिप्लाई ना करे, लेकिन मेरी कोशिश होती है, अगर कोई ओपनिंग आई हुई है और किसी ने अप्लाई की है और ओपनिंग भी है मेरे पास, तो मैं उस प्रोफाइल को फौरन प्रोसेस करवाता हूँ, ठीक है, अपनी टीम को फॉरवर्ड करके। तो ट्राई करना है कि आप जितने भी एचआर के लोग हैं, रिक्रूटर्स हैं, टैलेंट एक्विजिशन के लोग हैं, ये बेशक नोट कर लो अपने पास कि आप एक फ्री प्लेटफॉर्म है ना, तो आप बैठो और बैठे हुए 1 घंटे के अंदर आपका बस फोकस ये हो कि मैं सिर्फ अपने कनेक्शन ऐड करने हैं। मैंने वो टैब में पीपल सर्च के ऊपर जाके बस लोगों को ऐड करना है, ठीक है। और किन किन लोगों को आप ऐड करोगे? जो टेक्निकल नेचर के लोग हैं वो भी हो सकते हैं, लेकिन इनिशियली आपने फोकस किन के ऊपर करना है? एचआर, क्या कहते हैं, एचआर डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, स्पेशली रिक्रूटर्स, जो टर्म होगी टैलेंट एक्विजिशन की होगी, या टैलेंट मैनेजमेंट के लोग हो सकते हैं, हेड हंटर भी वो कह सकते हैं अपने आप को, ठीक है। सो रिक्रूटमेंट, टैलेंट एक्विजिशन, हेड हंटर, रिक्रूटर, ये 3-4 टर्म्स होती हैं। मेक श्योर कि आईटी कंपनीज हो जाएं, मेनली उनके ऊपर आप फोकस करो, और फिर बाकी लोगों को भी आप ऐड करना शुरू कर दो, ठीक है। उसका फायदा ये होता है कि ये लोग अपनी प्रेजेंस अपनी जो शो करते हैं, जॉब ओपनिंग्स लगाते हैं, या कोई रेफरल्स अगर हो जाए, किसी जॉब पे कमेंट किया हुआ है, तो वो भी आपके वॉल के ऊपर शो होती है, और वहाँ से आपको पता हो सकता है कि यार नेटसोल में कोई जॉब्स आई हुई हैं, कोई सिस्टम्स में जॉब आई हुई है, कोई कॉन्फिज में, माइंडस्टॉर्म के अंदर कोई इस तरह की जॉब्स आई हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सो लिंक्डइन हो गया, रोजी हो गया, थर्डली जॉब पोर्टल्स। जितनी भी अच्छी कंपनीज होती हैं, इन सब की एक सेंट्रलाइज रेज्यूमे पोर्टल भी होता है, जहां पर आप अपनी जॉब पोस्ट करते हो और आप डायरेक्टली वहां पर भी अप्लाई भी कर सकते हो। इवन नेटसोल का भी एक पेज है, careers@netsoltech.com, उसके ऊपर आप अगर जाते हो और देखते हो तो बहुत सारी ओपनिंग्स हैं, वहां पर अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हो और जॉब के अगेंस्ट आप ड्रॉप करते हो सीवी, और हमें डायरेक्टली इनबॉक्स में आ जाती है। तो हर कंपनी ने अब अपने ये करियर्स के पेज बनाए होते हैं, कोई ना कोई ईमेल आईडी रखा होता है जिसके ऊपर आप ड्रॉप कर सकते हो। सो मेक श्योर कि डेली बेसिस के ऊपर आप आधा घंटा, पौना घंटा अपने लिए निकालो डिफरेंट एस्पेक्ट के लिए। कभी अपने बारे में सोचो कि यार मैं अपनी सीवी किस तरह इंप्रूव कर सकता हूँ, मेरे से क्या क्या क्वेश्चनिंग की जा सकती है, किस तरह इंटरव्यू मुझे फंसा सकता है। फिर आप कभी आधा घंटा, 1 घंटा निकालो सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल अच्छी करने में और साथ में अपने कनेक्शंस ऐड करने में। फिर कभी अपने लिए टाइम निकालो अपनी स्किल सेट डेवलप करने के लिए। मैं पहले बता रहा था कि हम लोग अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च नहीं करते। एक बहुत अच्छा टूल है लिंक्डइन लर्निंग का, ठीक है। एज एन इंडिविजुअल इट विल कॉस्ट यू अराउंड $30, तकरीबन ये 4800 या 5000 या 5500 बनता है, ठीक है ना, एवरी मंथ, जिसमें से फर्स्ट मंथ इवन फ्री भी होता है। आपको अपने क्रेडिट कार्ड की या अपने को डेबिट कार्ड की डिटेल में डालनी पड़ती है, और फर्स्ट मंथ फ्री होता है, और बाद में आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो उसे। उसका फायदा ये होता है कि लिंक्डइन लर्निंग के थ्रू आप कोई भी टॉपिक मेंशन करो और उसकी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ट्रेनिंग आ जाती है, वीडियो फॉर्म के अंदर। एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म, आई रिकमेंड यू ऑल कि अपने लिए कभी 5-6 हज़ार खर्च करो और आप वो ट्रेनिंग लो। उसका फायदा क्या होता है? फायदा एक तो ये होता है कि बड़ी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ट्रेनिंग है, वीडियोज होती हैं, आपके क्विजेस भी होते हैं, और अगर आप वो सक्सेसफुल कंप्लीट कर लेते हो तो आपके लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर सर्टन जो स्किल सेट के बैजेस हैं वो ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 महीने पहले एक कोर्स लिया टैलेंट हंटिंग का या टेक्निकल रिक्रूटमेंट का लिंक्डइन के ऊपर ही, ठीक है। और उस ट्रेनिंग के अंदर लिखा हुआ था कि अगर आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, सो द स्किल्स दैट यू विल एक्वायर इज रिक्रूटमेंट, टैलेंट एक्विजिशन, और जॉब डिस्क्रिप्शन या रेज्यूमे रिव्यूइंग। ये स्किल सेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये स्किल सेट पहले फाइल पे मेंशन नहीं थे, ओके। सो मैंने वो ट्रेनिंग ली, और जब मैंने कंप्लीट कर लिया, बाय द एंड ऑफ इट मुझे लिंक्डइन ने कहा कि जी ये 3 स्किल सेट है, ये हम आपकी प्रोफाइल पे अब ऐड करने लगे हैं, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रोजी हो जाए, लिंक्डइन हो जाए, इट वर्क्स जस्ट लाइक गूगल।
आई एम श्योर आप सब लोगों को SEO का पता होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इफ यू सर्च सर्टेन कीवर्ड, जिस तरह हम रोजी के ऊपर करते हैं कि जी लुकिंग फॉर वेब डेवलपर, .NET हम लिख देंगे, कोई कीवर्ड है, तो जो कीज मैच करेंगे उसी तरह प्रोफाइल्स ऊपर आ जाती हैं। सो अगर आपकी प्रोफाइल अपडेटेड है, आप रिफ्रेश करते रहते हो और आपने डिटेल में अपने स्किल सेट्स लिखे हुए हैं, तो वो वाली प्रोफाइल ऊपर आ जाएगी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई हेड हंटर है जो कि एक टेक्निकल रिक्रूटर ढूंढना चाह रहा है आईटी के अंदर, और मैंने भी रिसेंटली अपना स्किल सेट ऐड किया, मैंने ट्रेनिंग की है, मैं रोज अपना अपडेट भी कर रहा होता हूँ, विजिट करता रहता हूँ पेज, और रिसेंटली ट्रेनिंग्स लेके मैंने स्किल सेट भी ऐड हो गया हुआ है, तो मेरी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी, और 50,000 या 5 लाख लोगों में से एटलीस्ट आई विल बी इन दी इनिशियल 2 to 3 पेजेस, और मेरे कांटेक्ट करने की या किसी को मेरे पास आने की और मुझे मैसेज करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर चांस ऑफ विजिबिलिटी, आपने एक्टिविटीज अपनी लिंक्डइन और रोजी के ऊपर करनी होती हैं। कभी प्रोफाइल अपडेट कर ली, वर्डिंग चेंज कर ली, अपना प्रोफाइल कुछ ऊपर नीचे कर लिया, स्किल सेट को ऐड कर लिया, सर्टिफिकेशन ऐड कर दी, CV नई ऐड कर दी, कोई टाइटल ऐड कर दिया, तो ये आपको थोड़ी बहुत एक्टिविटीज करनी होती हैं, ठीक है। So guys, that is it from my side. I hope कि थोड़ा बहुत engaging आपको ये सेशन लगा होगा। मैंने ऑलरेडी काफ़ी ऊपर टाइम ले लिया हुआ है, लेकिन अब मेरी कुछ और भी मीटिंग्स हैं, सो आई वुड रियली वांट जल्दी से अगर आप लोगों को फीडबैक हो, नेक्स्ट टाइम इस सेशन को हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ और अगर आपके जहन में बातचीत हो, तो आई एम ओपन फॉर सजेशंस, और आप मुझे बता दो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं उमैर बात कर रहा जी हूँ। उमैर। सर माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन रहा। वैसे मैंने थोड़ा सा लेट ही ज्वाइन किया था, तो बाकी जितना सेशन मैंने सुना माशाल्लाह बहुत ग्रेट रहा, काफी सीखने को मिला। क्योंकि ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उमैर, अभी तो आप फ्रेश ही हो ना, लेकिन आगे जाके यू हैव टू मैनेज योर वर्क लाइफ बैलेंस। आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ है और एक आपकी पर्सनल लाइफ भी है, ठीक है ना। तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बिल्कुल एक बैलेंस रखना होता है। हम हर वक्त काम भी नहीं कर सकते और हर वक्त फैमिली को भी टाइम नहीं दे सकते, लेकिन इन दोनों के बीच में हम एक डिवीजन जरूर रख सकते हैं। श्योर सर। जी, और कोई क्वेश्चन या कोई फीडबैक अगर हो किसी के पास? सर ओवरऑल सेशन काफ़ी अच्छा था, इंफॉर्मेटिव सेशन था, लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट सेशन। सो आपसे क्वेश्चंस, कुछ क्यूरीज डिटेल में नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करके आए तो आपसे डिस्कस कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, अपने बारे में जो भी क्वेश्चन करने हो कि जी मेरे जहन में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, एक इंटरव्यू ने मेरे से ये क्वेश्चन किया था, तो मेरे से आंसर दिया नहीं गया, तो आप मुझे बताएं अगर आप होते तो आप कैसे आंसर देते। इवन इस तरह की भी क्वेश्चन आप लेके आ सकते हो, ठीक है। और आई वुड एक्चुअली वांट कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन मेरे से करो, ताकि हम लोग वो जो एक मॉक इंटरव्यू होता है हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और मारिया, फॉर द नेक्स्ट सेशन आई वुड रिकमेंड कि हम सब लोग अपने कैमरास भी ऑन कर लें, क्योंकि पहले से इन्फॉर्म नहीं था। कैमरास ऑन होंगे तो हम ज्यादा इंगेज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। एग्जैक्टली। अच्छा, थैंक यू सो मच साद। आई होप लाइक इफ अगर आप कुछ कहना चाह रहे हो साद तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज फिर हम इसको क्लोजिंग की तरफ लेके चलते हैं। हेलो जी मारिया, आई थिंक नो फर्दर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन। ठीक हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच साद, एंड आई एम श्योर कि इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। और नेक्स्ट सेशन हम लोग जल्द प्लान आउट करके विल कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट्स एज वेल, और साथ हम लोग फिर इसको म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं कि हम इसको फॉलो अप सेशन कब कर सकते हैं। उसमें जो है आप लिंक्डइन प्रोफाइल भी ऑब्वियसली इनको थोड़ा और डिटेल में बता दीजिएगा, बिकॉज हम लोग नेक्स्ट सेशंस जो हैं वो हमारे प्लान है फॉर लिंक्डइन प्रोफाइलिंग, 30 सेकंड एलिवेटर पिच, इंटरव्यू स्किल्स, वो आपने थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं टच ग्राउंड हर किसी पे दिया आपने। थैंक यू सो मच। ठीक हो गया मारिया, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के लिए जो है ना वो हम ज़्यादा प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चंस हों, कोई रियल लाइफ सिनेरियोज, वो हम सब कुछ एक दफ़ा फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिकॉज आज ज़रा वर्क वाइज एंगेजमेंट मेरी ज़्यादा है, तो टाइम ज़्यादा इस तरह नहीं दे सकते, लेकिन वीकेंड पे सैटरडे को करते हैं, और एटलीस्ट काम से हम फ्री होंगे तो डिटेल में बातचीत हो जाएगी। ठीक है, ठीक है जी, चले। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।